वेलकम टू किताब राइटिंग पब्लिकेशन। आज हमारे साथ हैं मिस्टर बीपी अग्रवाल सर। फर्स्टली आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू सर कि आपकी बुक हमारे साथ पब्लिश हो चुकी है और सभी प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। तो आपको कैसा लग रहा है? मेरा ये पहला ऑथरिंग है बुक का। और मैं आई एम नाउ 60 years old, but I have started writing just now. And after in the corona period, I took a U-turn in my life and started writing notes on chemistry, biology, accounts, political science. तो उस पीरियड में 3 साल तक घर में रह करके मैं सिर्फ नोट्स ही लिखा हूँ। और नोट्स लिखने के बाद में एक स्कूल में ज्वाइन किया एज ए टीचर। देन आई बिकेम ए एडमिनिस्ट्रेटर। देन आई स्टार्टेड मोटिवेशन कैरियर गाइडेंस, एंड नाउ आई एम आल्सो ए विजिटिंग फैकल्टी इन सम स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन रायपुर। एंड जस्ट last 1 month I have started writing, and now I am ready with around 10 titles. अमेजिंग। ग्रेट सर। आपने इतना मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हाँ, इतने कम टाइम स्पैन में ही आपने इतना कुछ कर रखा है। हाँ, actually, I am also writing, and I am motivating students to write. 5 of my students have joined in my WhatsApp group, and I give them guidance over the WhatsApp, and they are writing on physics, chemistry, biology, and social science. And अमेजिंग। that book, I'll be publishing it like that. ग्रेट सर। सर नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपकी ये जो बुक है वो किस मतलब बेसिकली आपकी बुक से क्या हमारी ऑडियंस को सीखने को मिलेगा? See, accounts is a it is a very technical subject. Very few people, very few students are able to understand it clearly. And commerce is normally taken by students who have not decided their aim in life or are weak in studies. Commerce is usually taken by those students who are weak in studies normally. Very few percentage of students take commerce for doing CA or company secretary or other MBA and BBA. So this book has been designed in such a manner that these weak students can easily go through the contents of the book and have a good basic idea of accounts. That was my aim. And the thickness of the book has been reduced to a very large extent. And what I propose to do now, before the examination, less than 2 months earlier, I will be giving them a worksheet in spiral binded, and they will answer the questions in that sheet itself, and that will make them revise all the chapters automatically. So even if they don't study at home, they would be able to appear for the exam. That was the aim. ग्रेट सर। अमेजिंग। किताबें जितनी मोटी रहेगी ना, उतनी स्टूडेंट्स दे विल बी रिलक्टेंट टू ओपन इट एंड स्टडी. दैट इज व्हाई आई हैव रेस्ट्रिक्टेड इट टू 100 some odd pages only. ओके, दैट्स That was the, अमेजिंग। because यहाँ पे जो लोकल बुक चल रहा है पब्लिशर का अकाउंट्स का, इट इज हैविंग सम 350 pages, and I have reduced all the facts and concentrated on the muscles and bones only. ग्रेट सर। अमेजिंग सर। तो सर जैसे आपने कहा कि आप सिर्फ अकाउंटेंसी नहीं, आप बायोलॉजी केमिस्ट्री सब कुछ चीजें पढ़ा रहे हो, तो मतलब ये सब कुछ साथ में कैसे? जैसे जनरली अगर किसी इंसान को देखे या किसी भी टीचर को देखे तो वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, या फिर मान लो एक हो गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ा लेगा, तो आप कॉमर्स साइंस वो सब साथ में कैसे? मेरे को एक बात बताइए, ये जो वीडियो इंटरव्यू आप ले रहे हो, इसका क्या, इसका बाद में क्या करते हो? हम सर ये यूट्यूब पे आएगा। अच्छा, यूट्यूब पे है। यस सर। ये देखिए, टुडेज बजवर्ड इज, previously the buzzword was jack of all, master of none. My parents sent me to Stuart School, and that was an English medium school in Orissa, and that was at that time it was one of the best schools of Orissa. अमेजिंग। They
the English teacher used to teach us English, and she was an Anglo-Indian, and she used to roll pencils between our fingers like this. And she used to break wooden scales on the knuckles of our fingers. That's how we were taught English those days. And that beating and that punishment has taught me and brought me at this level now. And in today's world, punishment to children is banned. So the teachers were bad in those days, and that is why I am good nowadays. अमेजिंग सर। बट स्टिल लाइक मतलब आप कैसे दोनों चीजों को लाइक साइंस का भी देखिए, दोनों तीनों चीजों का ये ऐसा है, हम्म I still remember my biology teacher, हम्म her actions of hands while teaching on the board. And I had a talk to her on phone. She is staying at Pune or Bangalore. Her son is in USA. He connected me to her call, and she remembers my name. And I passed biology in class 10 in the year 1977. I still remember her way of teaching, and that recollects in my mind. And that is why I first focused on biology. And as regards chemistry, there was a chemistry teacher in the school where I was teaching. ओके She resigned, अच्छा and the principal of the school told me that, can you teach this chapter of chemistry to class 11? I told, let me see the book. He gave me the book, and I read it at home and studied it. And after a few days, I found that I was teaching in the blackboard. That was how I entered chemistry. ओके Social science and political science, I am able to teach just because I am reading newspaper daily for half an hour for all political news. And that has helped me to teach social science and political science. ग्रेट सर That is my way. दैट्स अमेजिंग आई मतलब इतना ज्यादा वर्सेटाइल आई हैवंट सीन किसी को भी कि वो इतना ज्यादा वर्सेटाइल है कि हर तरह की चीजों को एक तो वो जो एक्सेप्टेंस है कि कुछ भी आएगा तो हाँ ऐसा नहीं कि मना कर देना कि नहीं आता तो अपने जोन के बाहर कदम ही नहीं रखना तो वो एक बहुत No, no. अच्छी चीज आज मुझे भी आपसे I सीखने को मिली है और हमारी ऑडियंस को भी मिलेगी जरूर जी सर I never stay in comfort zone. दैट्स अमेजिंग हम्म। अभी यस आप हमारे घर पे भी आएंगे तो आई विल शो यू अराउंड 20 diaries have been filled up with chemistry, physics, biology, social science, political science, philosophy, and everything. अमेजिंग सर That is my way. दैट्स I only tell my students that the more you write, the more you learn. I stress upon writing, यस not only reading, not only reading. I stress upon writing. And that writing has helped me to write books now. ओके सर मुझे ये बताइए जैसे आपने कहा कि आप बच्चों को करियर गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं तो आपके समय में आपने किस तरह से अपने आप को पहचाना कि मुझे क्या आगे करना चाहिए तो वो आपका क्या जरिया See, रहा yes, I belong to a business family at that time. At that time, my entire family, my parents and my brothers were doing business, and I was the youngest member of my family of the family. So there was a basic ingredient in myself that I should take commerce because my father he engaged me in accounting work in the office. So where there I picked up the basics of accounting, and you will be surprised to know that I can even write accounts in Hindi system of accounting. In those days, there were no computers, and that used to be done manually. So I started my working as a Hindi accountant, and then I learned English accountancy in my college days. So that prompted me to take commerce line, and I completed my MCom in 1984. ग्रेट सर
ओके। सर जैसे आपके टाइम का जो एजुकेशन सिस्टम रहा, जैसे आपने एक डिफरेंस तो अभी बता दिया कि उस टाइम पे जो टीचर्स होते थे वो काफी हमें पनिश बहुत ज्यादा ही मतलब यस, यस, करते यस। थे। और अभी थोड़ा सा उसमें काफी एक रिलैक्सेशन आ गया है। तो बाकी इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें आपको आपके टाइम की एजुकेशन और आज की एजुकेशन में डिफरेंट लगती हैं, एंड उन डिफरेंसेस को आप क्या कहेंगे कि वो अच्छा है, बुरा है, या किस टाइप का है? नहीं, देखिए, पहले की जो साइंस बुक थी क्लास 10 में, हमारी जो साइंस बुक थी, आज वो बुक क्लास 6 में चल रही है। जी। हाँ, आज वो बुक आई एम सीइंग इन क्लास 6। So that was the level of standard at that time. Now, at present, knowledge has expanded ट्रू। to a great extent. Daily research is being done. So time is limited and knowledge has become unlimited. So the only way I teach the students that you should pick up only the necessary portions of the knowledge and make a note of it. Then only you will be able to appear for the exams. These thick books will not help you in exams. Unless you write the notes, you will not be able to write in the exam because you are getting marks on your writing, not on your oral. बिल्कुल। That was the difference. During those days, the teachers were emphasizing on the basics of the subjects, which is lacking today. अरे। आज कॉमर्स का आज कॉमर्स का स्टूडेंट को आप क्लास 12 पढ़ लेंगे, एंड इफ यू गिव देम ए बैंक चेक बैंक का चेक होता है ना, इफ यू गिव देम, सर। they they will not be able to guess who is paying to whom. तो मैं अभी कुछ मतलब इन 2 सालों में मैं ऑफिस से चेक लेके जाता हूँ, एंड आई गिव द फोटोकॉपीज ऑफ द चेक्स टू द स्टूडेंट्स, एंड आई आस्क देम टू राइट द चेक्स इन देयर ओन हैंडराइटिंग एंड टेल मी हु इज गिविंग टू whom. वो बैंक का जो स्लिप होता है ना, डिपॉजिट स्लिप, उसको भी लेके जाता हूँ, तुम भरो इसको। अब वो चेक में टू पे अरुण अग्रवाल लिखा है और बैंक का स्लिप में वो अपना नाम भर रहे हैं। जब चेक में अरुण अग्रवाल लिखा है, हाँ। हाउ कैन यू राइट ऑन द बैंक स्लिप दैट शोभा बिल्कुल। अग्रवाल, हर नेम? तो दिस इज द बेसिक्स नाउअडेज। तो ये जो बुक है, इसी में मैंने बेसिक्स को बहुत स्ट्रांग किया है कि अगर वो लड़का आगे चल के सीए या सीएस या बीबीए या एमबीए करेगा, he will not have to worry about the basics, and he will be having a cakewalk on the basics when he goes for further studies, and that can be taken only in class 11, because class 12 में ये बच्चे लोग ओनली दे स्टडी फॉर द बोर्ड एग्जाम, वो एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं चाहते. So that is why I have covered all the topics in that book, and most importantly, there are two extra chapters in that book. That is how to start your own business. यस सर। That has been taken as chapter 14, and chapter 15 carries about careers and colleges in commerce. अमेजिंग। कॉमर्स लेने से क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, उसका मैंने लिस्ट प्रोवाइड किया है, ए वेरी एग्जॉस्टिव लिस्ट, एंड कॉलेजेस ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, उसकी भी मैंने लिस्ट प्रोवाइड की है, सो दैट दे कैन हैव ए रेडी रेफरेंस. ये 2 चैप्टर्स मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है फॉर द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स. ग्रेट सर। दैट्स अमेजिंग जी। हम्म. ओके सर। तो सर जैसे आपने अभी बताया कि बच्चों की एजुकेशन के बारे में, तो आपको क्या लगता है हमारा एजुकेशन सिस्टम, हम चाहे जो भी बोल ले, स्टार्टिंग से अभी तक, मतलब जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग, मार्क्स मैटर्स द मोस्ट। हर जगह पे मार्क्स मैटर करते ही हैं। चाहे अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज चाहिए, अगर आपको कहीं पे अच्छा मतलब कुछ भी करना है, तो एट द एंड आपके मार्क्स तो देखे ही जाएंगे। तो व्हाट वुड यू से देखिए, अबाउट मार्क्स तो मार्क्स? मार्क्स आजकल देख रहे हैं, पर आजकल हर लेवल में देर इज ए ऑब्स्टिकल ऑफ एंट्रेंस टेस्ट. बिल्कुल। बिल्कुल। स्कूल का मार्क्स को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, प्लस क्लास 10 का मार्क्स की भी इम्पोर्टेंस
खत्म हो रही है, क्लास 12 के मार्क्स की भी इम्पोर्टेंस खत्म, दैट कम्स एज अ फॉर्मेलिटी एग्जाम अभी। एंड एवरीवेयर देयर इज ए ऑब्स्टिकल ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। तो बिल्कुल। एंट्रेंस टेस्ट कैसे करेगा वो लड़का? अनलेस यू योर बेसिक्स आर, मतलब अनलेस योर बेसिक्स आर अंडरस्टूड, हाउ कैन यू अपियर फॉर दोज एंट्रेंस टेस्ट? इसलिए मैंने इस बुक में बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग किया है, सो दैट जैसे सीए कर रहा है तो सीए का फाउंडेशन उसके लिए मतलब इजी हो जाना चाहिए, सीएस का फाउंडेशन उसके लिए इजी हो जाना चाहिए, या फिर एमबीए बीबीए के लिए कैट वगैरह देते हैं, एमबीए के लिए कैट देते हैं, लॉ लॉ के लिए क्लैट देते हैं। तो उसमें मैंने सम लीगलिटी की प्रोविजंस भी मैंने उस बुक में डाला है। आज वही बुक का कंटेंट आई शोड इट टू माय टीचर, अभी नया नया ज्वाइन करी है इसी स्कूल में मैंने जहाँ पढ़ा रहा हूँ, कॉमर्स टीचर। तो वो मेरे को आके बोली कि सर इसमें तो इतने सारे सब हार्ड चीजें हैं, बच्चे समझ नहीं पाएंगे, एक्ट्स का लिखा हुआ है, प्रोविजंस का लिखा हुआ है, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं बहुत हाई लेवल के। मैं बोला कि वो बहुत जरूरी है करना इसी लेवल में। जब बच्चे का आईक्यू लेवल आज की तारीख में इतना बढ़ गया है, जब बिल्कुल। मोबाइल की सारी चीजें वो समझ पा रहे हैं, तो व्हाई कांट दे अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स एंड द मीनिंग्स? अपने को उस वर्ड टीचर्स हैव टू मेक इट अंडरस्टैंड इन प्रैक्टिकल वे, तभी वो समझ पाएंगे। आज आप खाली उसको रटन विद्या करके पढ़ाते रहेंगे, टीचर इसको पढ़ लो, इसको रट लो, दिस इज नॉट द वे ऑफ टीचिंग। बिल्कुल सर। ओके। सर जैसे आप जब आप गाइडेंस देते हो किसी भी बच्चे को अबाउट देयर करियर, तो ये जो गाइडेंस है वो आप किस बेसिस पे प्रोवाइड करते हो? लाइक कोई गाइडेंस एग्जामिनेशन? गाइडेंस का कैरियर गाइडेंस का मैं तीन बेसिक्स पकड़ रहा हूँ। ओके। one basis is how much time you have for studies, ओके। how यस। much time you have for studies. यस सर। Secondly, how much money you can spend on your studies. जी। Thirdly, how far your parents will allow you to go outside your comfort zone. Fourthly, in what subjects your basics are strong. ओके। ये चार एनालिसिस करने के बाद ही आई टेल माय स्टूडेंट्स टू चूज देयर करियर। एंड जब अभी। आपके पास टाइम नहीं है हम्म। तो बिल्कुल। जब आपके पास टाइम नहीं है तो आप नीट में क्यों जा रहे हैं? नीट मीन्स मेडिकल लाइन, आप एमबीबीएस करोगे, फिर एमडी करोगे, फिर कोई स्पेशलाइजेशन लोगे, तो उसको फिर उसको उस लाइन में जा ही क्यों रहे हो जब आपके पास टाइम नहीं है? यू गो फॉर बीकॉम, यू डू बीएससी, बीएड कर लो, टीचर बन जाओ। आपके पास कितना पैसा अफोर्ड करने के लिए? आज एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हैं फॉर अंडर अंडर स्कोरिंग ऑफ नीट, प्राइवेट कॉलेजेस में 1 करोड़ इज बीइंग स्पेंट, पूना में एवरीवेयर दे आर डिमांड। जब पैसा नहीं है तो वाई आर यू गोइंग फॉर दिस लाइन? पेरेंट्स आपको बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं है, तो आप जिस सिटी में लोकेटेड हैं वहां का बेस्ट पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर को आप स्टडी करो, वेयर यू कैन स्टडी। जब आपको भेजने के लिए बाहर पेरेंट्स तैयार ही नहीं है तो वाई आर यू ड्रीमिंग ऑफ गोइंग आउटसाइड? स्पेशली दिस इज मेंट फॉर गर्ल्स, जो पेरेंट्स हेजिटेट टू सेंड देम आउट। ओके। फोर्थली, आपका किस सब्जेक्ट में आपकी बेसिक्स स्ट्रांग है? हाँ। आज मेरे जो 5 बच्चे जो मेरे लिए बुक लिख रहे हैं, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क देम, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सोशल साइंस में किस सब्जेक्ट में यू कैन राइट फॉर मी? एंड आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट विदाउट ए बुक। आप किताब को सामने रखो और उसको बनाओ नोट्स। तो वो अपने आप बोले कि सर मैं केमिस्ट्री लिखूंगी, सर मैं फिजिक्स लिखूंगी, सर मैं बायोलॉजी लिख पाऊंगी, सर मैं सोशल साइंस लिख पाऊंगी। उसी हिसाब से मैंने उनको सब्जेक्ट अलॉट किया और आज वो लिख रहे हैं। And very soon, in this April month, they'll be able to write it, and I will get it published in the May month. तो कैरियर गाइडेंस का मैंने एक लिस्ट भी बनाया हुआ है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एंड अदर्स, एक एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाया हुआ है, उसमें 125 कैरियर्स की लिस्ट है। वो लिस्ट को मैंने लैमिनेट किया है A4 साइज पेपर में, एंड दैट लैमिनेटेड लिस्ट को मैंने हर स्टूडेंट को मेरे स्कूल में दिया है, बिकॉज आई वर्क इन 2 schools
one college, sorry, 3 schools and one college. तो ओके। मेरे पास में देर इज ए सर्कल ऑफ अबाउट 200 से 300 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे सर्कल में हैं, एंड दे टेक गाइडेंस फ्रॉम मी, फोन वोन आते रहते हैं उनके। तो मैं फिर वो लिस्ट को मैंने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया, एंड दैट टू लैमिनेटेड, ताकि वो उसको फोल्ड नहीं कर सके। एंड आई टेल देम टू शो इट टू योर पेरेंट्स एंड डिस्कस एट होम व्हाट कैन यू डू, एंड दे हैव टेकन द एडवांटेज, सम ऑफ देम हैव ऑलरेडी टेकन दैट एडवांटेज ऑफ स्टडीइंग दैट। दिस इज द वे। अभी एक कुछ दिन पहले मैंने कैरियर गाइडेंस का सेमिनार भी किया था रायपुर में, यस। इसी संडे को किया। ओके। सम 15 और 20, 15 बच्चे आए थे, एंड पेरेंट्स, कुछ के पेरेंट्स भी आए थे, एंड वी हैड अ वन टू वन सेशन विद देम आल्सो। I had a career counselor with me also to attend that, to give the talk also. So we roughly spent 2 hours for the seminar. That was a free seminar. That was a free, so no registration charge. So in this way we are doing. जितना हो सकता है उतना करते हैं। अमेजिंग सर, इट्स रियली नाइस हम्म। कि मतलब आप प्रॉपरली एनालाइज करके तब आप उनको बता रहे हो कि हाँ हाँ, स्टेज में आई जाना। आई डू इट आफ्टर ए होमवर्क। देखिए, होमवर्क स्कूल डेज में भी इम्पोर्टेंट था, एंड स्कूल के बाद में भी होमवर्क इज इम्पोर्टेंट। whenever you go to meet someone, please do your homework, what you have to talk with him। बिल्कुल। मेरे पास में ये डायरी मेरे पॉकेट में रहती है, स्पाइरल बाइंडेड डायरी है। और अगर मैं किसी एडवोकेट के पास जा रहा हूँ या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जा रहा हूँ कुछ बात करने, इवन इफ आई गो टू माई प्रिंसिपल टू टॉक विथ हिम ऑन सर्टन इश्यूज, मैं इस पे लिस्ट बना के जाता हूँ, 1 2 3 करके, कि इस चीजों में मेरे से बात मेरे को डिस्कस करनी है, एंड दिस रिमेन्स इन माई पॉकेट। तो बात करते वक्त आई कीप द डायरी इन फ्रंट ऑफ मी। दैट इज द वे ऑफ माई वर्किंग। ग्रेट सर। ओके। तो सर जैसे आपने ना अभी बीच में कुछ बात करी थी टीचर से रिलेटेड, आपके बहुत सारे टीचर्स के आपने नाम बताए कि इनका आप पे कुछ इन्फ्लुएंस रहा है और आपका भी बहुत बच्चों पे ऑब्वियसली रहा होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि गुरु आपके लिए क्या है, और आपकी लाइफ के किसी एक ऐसे गुरु के बारे में हमें बताइए जिनका इम्पैक्ट आपके ऊपर सबसे ज्यादा रहा हो। देखिए, मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहा है मेरे फादर का। ओके। ही वॉज अ वेरी, उसका उनका जितना इम्पैक्ट रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। वो जब काम करते थे, उनके बगल में मैं बैठता था ऑफिस में, तो हम्म। वॉट एवर ही वॉज राइटिंग इन दोज डेज, ही यूज टू गिव दैट पेपर टू मी, कि इसको एक बार पढ़ लो, और उसके बाद में वो पेपर उनके टेबल से बाहर जाता था। इन दैट वे आई बिकेम acquainted विथ राइटिंग। और हमारी खुद की स्कूल और कॉलेज है कटक में इन टूडेज डेट। वी रन ए सीबीएसई स्कूल इन कटक, बट आई स्टे इन रायपुर। अच्छा। तो वो स्कूल मैं और पिताजी फैमिली ने मिलकर ही बनाया था, एंड टुडे आल्सो 600 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन दैट स्कूल। सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है, एंड वी आर हैविंग 100% रिजल्ट। एंड एक कॉलेज भी है जो गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर चुका है, नाम हमारा है उसमें, हमारी प्रॉपर्टी भी जा चुकी है। एंड माय फादर वाज वेरी इंटरेस्टेड इन एजुकेशन फील्ड। तो एजुकेशन का बेसिक्स जो है मैंने उनके बगल में रह के ही सीखा। उनका एक दूसरे में एक चीज उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी थी जो मेरे को आज तक मतलब इन्फ्लुएंस रही है, कि देयर इज सम इनकम टैक्स इशू समथिंग। तो वो वो बुक रखते थे, लॉ की किताब बगल में। ही हम्म। वॉज नॉट ए लॉयर, पर वो लॉ की किताब रखते थे बगल में, एंड यूज टू रेफर टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन, कि वो सेक्शन, व्हाट डज दैट सेक्शन सेज अबाउट दिस इशू। And I used to sit beside him, and he used to give me also, hey, please go through that section and tell me what does it say। तो बुक्स को रेफर करके उसको इंटरप्रेट करके, दैट आई लर्न फ्रॉम माय फादर। ही अमेजिंग। हैड अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन मी। अमेजिंग सर, दैट्स ग्रेट। ओके। सर आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में कुछ बताइए। देखिए, स्ट्रेंथ्स तो आपको बता ही चुका हूँ, है ना, दैट इज समथिंग इज विच
is earned by me, and something is gifted by my father, and something is gifted by God also. मेरे नेक्स्ट टाइटल्स जो बुक्स के आ रहे हैं वो है थैंक गॉड, एक बुक आ रहा है, और एक बुक आ रहा है जस्ट फॉर टुडे, एंड वन बुक मोर, आवर साइंस इन आवर होम। आवर साइंस इन आवर होम एक बुक पब्लिश हो रहा है, मैं किताब को ही दूंगा अभी वो पब्लिकेशन। आई एम रेडी विद दैट कंटेंट, सम 30% बचा हुआ है, कि हम पूरा साइंस हमारे घर में है एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। आज बच्चों को पूछो कि एसिड हमारे घर में कहाँ है, दे विल टेल यू एसिड तो स्कूल के लैबोरेटरी में है, but they do not know acid is lying in our house also, in the form of vinegar, in यस, the form of lemon, in the form of oranges, and in the form of Harpic toilet cleaner, बिल्कुल। hydrochloric acid। और लेबल्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ। तो आई टेल द स्टूडेंट्स टू, जो चीज घरों में आती है उसके लेबल्स को पढ़ो। एवरीथिंग देयर इज देयर इन द लेबल्स। जो चीजें आती है आप लेबल्स को नहीं, आप कोरोना पीरियड में सबने अपना अपना हाथ सैनिटाइजर से साफ कर लिया 3 साल तक, पर ये नहीं मालूम कि उसके लेबल में क्या लिखा है। दैट इज अल्कोहल, यस, किसी ने नहीं पढ़ा, एथिल अल्कोहल, दैट इज अ हाइड्रोकार्बन फैमिली, पर किसी ने नहीं देखा है। तो उस बुक में 200 एग्जाम्पल्स हैं घर के अंदर साइंस, घर के अंदर साइंस एग्जिस्टिंग है। इन 200 एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन, अलग अलग सीरियल करके, एंड दैट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ ए बुक नाउ। ग्रेट तो सर। ये मेरा स्ट्रेंथ है। वीकनेस ये है कि आई एम लिटिल वेरी सॉफ्ट स्किन, ओके, मेरी मतलब सॉफ्ट स्किन मेंटालिटी है। आई गेट इमोशनल वेरी क्विकली। पीपल टेक मी फॉर ग्रांटेड बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड माई साइलेंस, दैट इज द थिंग। दे टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट ये तो बहुत कमजोर है, बट साइलेंस डजंट मीन यू आर वीक, बिल्कुल। है ना। और कुछ हेल्थ की इश्यूज हैं जो मेरी वीकनेस है, आई एम हैविंग अ स्टेंट इन माय हार्ट, एंड ब्लड प्रेशर रहता है तो उसकी मेडिसिन चल रही है। अब जैसे एज आएगा वो तो होगा, एज रिलेटेड ही है जो है, नथिंग बिग ऑन दैट। आज लोग 15-15 गोलियां खा के जी रहे हैं, एंड दे आर लिविंग देयर लाइफ। आज टैबलेट्स क्या खा रहे हैं, आज अपन जो खाना खा रहे हैं सब पेस्टिसाइड्स, सब केमिकल्स से भरे हुए हैं, सारी सब्जियां हैं, सारे फल हैं। आज ही पेपर में था तो तरबूज में इंजेक्शन दे करके उसको मीठा कर रहे हैं। हाँ, तो ये सब खाने पीने की चीज, तो यू आर अल्टीमेटली टेकिंग मेडिसिन, यू आर टेकिंग केमिकल्स इन फूड ऑल्सो। तो व्हाट अबाउट दिस टैबलेट्स, कम से कम ये टैबलेट्स में पता तो है आप क्या खा रहे हो, हाँ, पर सब्जियों में और फलों में तो आपको पता नहीं आप क्या खा रहे हो। सच तो में। दैट इज एज रिलेटेड जो चीजें हैं वो तो आएगी, एंड नथिंग मोर, मतलब वीकनेस ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर। सर, जैसे आपने अपनी एक बुक का टाइटल बताया जो अभी आने वाली है, थैंक गॉड करके, हम्म। तो डज दैट मीन यू बिलीव इन गॉड? एंड अगर आप बिलीव करते हैं तो आपके लिए आप सबसे ज्यादा मतलब किस फॉर्म को मानते हैं, भगवान की या गॉड की, जो भी देखिए थैंक गॉड का टाइटल कहाँ से आया, सिंस लास्ट, अभी मैंने लिखना बंद किया है, 10 सालों में, करीब 5-7 साल तक मैंने डेली 10 लाइन्स लिखा है थैंक गॉड के बारे में। है? क्या लिखने का स्टाइल था मेरा, डेट ऊपर में डालता था, थैंक, सबसे पहला सेंटेंस रहता था मेरा थैंक गॉड फॉर टुडे, सेकेंड सेंटेंस रहता था थैंक गॉड फॉर फ्री एयर वाटर एंड सनशाइन, ओके, मतलब काइंड सेकेंड ऑफ सेंटेंस, ग्रेटिट्यूड एक तरीके से आप शुरू कर रहे हाँ ग्रेटिट्यूड। हैं। हाँ थर्ड जी। सेंटेंस मेरा रहता था थैंक गॉड फॉर माई आईज, फॉर माई नोज, फॉर माई हार्ट, फॉर माई लंग्स, फॉर माई स्टमक। ये मेरे 3 सेंटेंसेस स्टैंडर्ड रहते थे एवरी डे लिखने का। उसके बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेंटेंस रहते थे व्हाट आई वांट इन लाइफ। ओके, अब जैसे मेरे को किसी इंटरव्यू में जाना है, तो वो पहले दिन, मतलब उसको एक हफ्ता पहले से मैं लिखना चालू कर दूंगा, थैंक गॉड फॉर द सक्सेसफुल इंटरव्यू ऑफ सो एंड सो। ओके, उसको पहले से लिखना है। इट्स लाइक काइंड ऑफ हाँ उसको पहले से, मैनिफेस्टेशन जो आजकल बहुत चल हाँ रहा है। मैनिफेस्टेशन।
अब जैसे लड़के का आईआईटी में, माय बिगर सन इज इन स्टडीड इन आईआईटी रुड़की, तो हम्म। उसका कुछ जी गेट गेट का एग्जाम था कुछ। जी। गेट का एग्जाम होने से एमटेक में एडमिशन मिलता है। हाँ जी, हाँ तो जी। उसका एग्जाम के एक महीना पहले मैंने लिखना चालू कर दिया था, आई थैंक गॉड फॉर माय सन बीइंग सक्सेसफुल इन गेट एग्जाम फॉर आईआईटी रुड़की। एक महीने पहले से चालू कर दिया था लिखना, एंड ही गॉट थ्रू। अमेजिंग। एंड ही गॉट थ्रू। तो ये मेरा, for 8 years I have written and I have kept those books with me, written books. I found that वो चीज मैनिफेस्टेशन अगर आप पहले से लिखना चालू करोगे, यू विल अचीव 90% सक्सेस। ये मैंने स्टैटिस्टिकली उसको स्टडी किया है। जो भी मैंने लिखा है, अगर 10 चीजें लिखी है तो 8 चीजें प्राप्त हुई है और 2 चीजें नहीं। तो 80% सक्सेस उसमें मिला मेरे को मैनिफेस्टेशन। तो जो थैंक गॉड का जो कंसेप्ट है वो 10 साल पहले शुरू हो चुका था मेरे माइंड में, जी। एंड दैट नाउ डेवलप विद द बुक्स। फिर मैंने अभी कुछ 5 साल पहले, अभी तो मैं छोड़ दिया था 5 साल तक, उसके पहले 2000 आई स्टार्टेड माय फर्स्ट बुक वाज डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय शशि थरूर, जो नॉवल था। ओके। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय शशि थरूर था कि ऑन पंडित नेहरू था, समथिंग दैट गान, मतलब दैट एक वेरी उस प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बुक थी वो। ओके। तो वो पीरियड है दो 2006। तो आई वाज राइटिंग माय डायरी सिंस 2006, आई एम राइटिंग नाउ। मतलब यू कैन कैलकुलेट द हाउ मेनी इयर्स आई एम राइटिंग। तो करीब 10 साल तक मैंने सिर्फ फिलोसफी पे डायरियां लिखी है, पेपर्स पढ़ के, न्यूज़पेपर्स पढ़ के, नॉवेल्स खरीद करके। तो उसमें जो भी पैरा मुझे अच्छा लगता था मैं उसको इंडिपेंडेंटली नोट कर लेता था डायरी में, विथ डेट। तो इस तरह की करीब 12 या 13 डायरीज आज भी रखी है मेरे पास, उन वो डायरियां। तो वो डायरिया थी, उसमें पैरास थे, एंड दोज पैरास आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो ये जो थैंक गॉड का जो कंसेप्ट मैंने बुक डेवलप किया है, वो उन डायरियों को वापस ला करके उनको सामने रख करके उसमें से मैंने कंटेंट को निकाल के इस बुक को बनाया है। ओके। हम्म। ग्रेट सर, दैट्स अमेजिंग. Okay. So sir, it is obviously a very inspiring interview. Like आपसे जिस तरीके से बातें हो रही हैं, जो चीजें जानने को मिल रही हैं, everything is very interesting. Sir, now I would like to ask you कि do you have any message for our audience? ऑडियंस को ये मैसेज है कि एक्चुअली आई एम नाउ इन एजुकेशन लाइन, सो आई एम मोर कंसर्न अबाउट द स्टूडेंट्स Yes. rather than parents. Parents have a role to play in the life of students, but students को, एक टीचर्स को एक मैसेज मेरा जाना चाहिए कि बच्चों को जो क्लास में वो पढ़ा रहे हैं, यू हैव टू मेक दैट टॉपिक इंटरेस्टिंग फॉर हिम टू अट्रैक्ट हिज अटेंशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, hydrogen appears in the periodic table, you might be knowing, Yes. if you are knowing Yes. hydrogen as Yes. an element, and Yes. it is at the top. Yes. It is First. at the top, Yes. कॉलम 1 में आता है। बिल्कुल. तो आप अगर एक लाइन ऐसा बोल देंगे कि हाइड्रोजन केमिस्ट्री का अमिताभ बच्चन है, तो क्या बिगड़ जाएगा? बिल्कुल. हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का अमिताभ बच्चन है तो क्या बिगड़ जाएगा अगर एक लाइन ऐसा बोल? तो बच्चों को इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको कुछ अलग ढंग से बताना पड़ेगा, सो दैट दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। नहीं तो वो बोर हो जाएंगे। क्योंकि बोर होने का कारण ये है कि देर आर मेनी लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस नाउअडेज। मोबाइल है, कंप्यूटर है, टीवी है। और हमारे हमारे दिनों में वो सब चीजें नहीं थी। बिल्कुल. एक रेडियो था, वो चलता था, वो भी टाइमली चलता था। हाँ. तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे हमारे टाइम पे। तो आज की तारीख में टीचर्स को ये मैसेज है कि वॉट एवर चैप्टर यू आर टीचिंग इन द क्लास, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। दैट इज माई मैसेज टू द टीचर्स।
एंड फॉर द पेरेंट्स मेरा ये मैसेज है कि आप स्टूडेंट्स के साथ में प्लीज स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। आप खुद मोबाइल देख रहे हो, तो वो भी मोबाइल में बैठेगा फिर। जब हाँ। आपको बात करने की फुर्सत नहीं है तो वो भी मोबाइल में बैठेगा, वो भी आपसे क्यों बात करेगा? You have to keep aside the mobile and spend quality time with the children and talk with them कि आज स्कूल में क्या पढ़े हो, क्या समझे हो। उनके उसके जो एक्सरसाइज बुक्स है, उसके नोट बुक्स है, उसको उसके सामने उसके बैग को खोल के देखिए व्हाट ही इज डूइंग। आप तो आजकल पेरेंट्स सब बाहर घूमते हैं, सब किटीज में जाते हैं, मूवीज देख रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, तो टाइम कहाँ है आजकल सबको? But you have to spend some quality time with your children so that they do well in their studies. आज स्टूडेंट और पेरेंट के बीच में इतना गैप हो गया है कम्युनिकेशन का हाँ। कि बाएं हाथ को नहीं मालूम दायां हाथ क्या कर रहा है। दिस इज माय मैसेज टू द पेरेंट्स। ग्रेट सर। सर नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा? वेरी नाइस। फर्स्ट टाइम आई एम फेसिंग ए इंटरव्यू इन द मोबाइल, नहीं तो पहले ऐसा कुछ था नहीं। एंड यू लुक लाइक ए यू लुक मोर लाइक ए जर्नलिस्ट rather than educational interviewer. थैंक यू सो मच सर। Thank you, Sain. ओके सर, सो डू यू हैव एनी सजेशन फॉर अस कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? किस चीज को? सर हमारी पब्लिकेशन। नहीं, पब्लिकेशन देखिए, आई एम न्यू इन दिस लाइन एज ए कस्टमर, एज अ ऑथर आई एम ए न्यू। एट दिस एज ऑफ 60 आई हैव बिकम एन ऑथर, so I am a new. So as a publisher, you have to be very specific and open to first time authors. जी। उनको दे आर नॉट वेल कन्वर्सेंट विद द सिस्टम, क्या चल रहा है कंट्री में फॉर पब्लिशिंग बुक्स। क्योंकि द सेम प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय वन ऑफ माय रिलेटिव्स, ही कॉल्ड मी फ्रॉम बैंगलोर and he wanted to publish his book on some journey to Turkey. He had been to Turkey and he was asking me that I'm not able to find a good publisher. I spoke to one or two of them and I was not satisfied with their talks. तो जो established authors हैं उनको वो प्रॉब्लम नहीं है। उनको they are well conversant with the system and they very well know the style of working of the publishers. The problem lies with the first time authors, those, and there are many authors who have written books but they are lying in dead stock क्योंकि they have not, they are not conversant with the system of working of the publishers. फर्स्ट टाइम ऑथर्स के साथ में आपको माथा लगाना पड़ेगा, आपको माथा खपाना पड़ेगा and you have to make them understand of each and every aspect of publishing. यस। Then only you will get first time authors. आपका जो एड्स आते हैं आप उसमें बोल्ड लेटर्स में पब्लिश करें, उसमें लिखें कि फॉर फर्स्ट टाइम ऑथर्स वी आर रेडी टू टॉक टू यू ओरली एट एनी टाइम। डेट दे दीजिए, टाइम दे दीजिए, आपका फोन अवेलेबल होना चाहिए। यू डेप्यूट समबडी टू कन्वर्स विथ हिम ऑन फोन ओरली। आपका एड पढ़ करके दे विल नॉट बी कन्विंस टू publish their books. You have to converse with them orally so that they become first time authors with your publication company. This is my message. यस सर। थैंक यू सो मच सर। एनी अदर सजेशन यू हैव इन योर माइंड सो दैट वी कैन नहीं, इम्प्रूव? ऐसा कुछ नहीं है। अभी now the publication is midway, the book has been launched. अब यस। आगे का कैसा सर्विस रहता है I do not know. I would be better able to tell about this after a period of 3 to 4 months. ओके। Then only I can give you a feedback. श्योर सर। Okay, thank you so much, sir, for this amazing Thank you. interview. I got to learn a lot from you, and हमारी audience ने भी आपसे बहुत कुछ सीखा होगा. So thank you so much for inspiring and for having this wonderful interview with us. Thank you, sir. Thank you.